پہنچانا چاہیے کہ جس طرح ایک نبی کا ایک منصب ہوتا ہے، اس منصب کو بحسن خوبی میرے آقا سر انجام دہی فرما رہے تھے کہ دیکھا کہ جو کوئی بھی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفوں کا اسیر بنتا ہے، جو کوئی بھی آپ کی غلامی میں آتا ہے، جو کوئی بھی اسلام کو قبول کرتا ہے، تو اس کو زد و کوب کیا جاتا تھا، اس کو پریشان کیا جاتا تھا، ہر لحاظ سے اس کا گھیرا تنگ کیا جاتا تھا۔ تو ابتدائی اسلام میں جن جن افراد نے اسلام قبول کیا انہیں انتہائی کٹھن اور دشوار گزار راستوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر لحاظ سے فیملی سے پریشر، باہر سے پریشر، نہ ڈھنگ سے انسان کھا سکتا تھا، نہ وہ باہر گھوم پھر سکتا تھا، نہ اپنا کوئی بزنس چلا سکتا تھا، ہر لحاظ سے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غار میں ہوشہ نشینی اختیار فرمائی، اور اپنے غلاموں کو بھی یہی حکم ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جاؤ۔ تو اسی اثنا میں کچھ دن اسی غار میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو گزر گئے تھے۔ بھوک نے حاضری کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب بھوک تنگ کر رہی ہے۔ تو میرے آقا نے غار سے باہر دیکھا تو ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا۔ تو میرے آقا نے اس شخص کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا راعی حل لک من لبن، کہ اے بکریاں چروانے والے، کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ تو اس چرواہے نے جب میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ حسین گفتگو کرنے کا جب انداز، جب یہ الفاظ سنے تو بغیر کھینچے رہ نہ گیا، وہ دوڑتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ جناب، میرے پاس اس لیوڑ میں سے ایک بکری ہے کہ جس کا دودھ میرے لیے میرے آقا نے چھوڑا ہوا ہے، لہٰذا میں اس بکری کا دودھ آپ کے لیے اثار کرتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی کٹورا، کوئی برتن ہے؟ تو اس پر اس چرواہے نے کہا، اس غلام نے کہا، جی میرے پاس ایک برتن ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جاؤ وہ برتن لے کر کے آؤ، اور جس بکری میں تمہارا حصہ رکھا ہوا ہے اس بکری کو بھی لے آؤ۔ چنانچہ وہ غلام گیا اور اپنی وہ بکری لے کر کے آیا اور برتن بھی لے کر آیا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست شفا اس بکری پر پھیرا، اور دست قدرت جب اس بکری پر پھیرا، اور اپنے ہی دست مبارک سے اس بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا۔ چنانچہ میرے آقا نے جب اس بکری کے نیچے کٹورا رکھ کر دودھ دوڑنا شروع کیا تو وہ برتن بھر گیا۔ پھر میرے آقا نے اس برتن کو اٹھایا اور خود نوش فرمایا۔ پھر میرے آقا نے برتن اٹھایا، بکری کے نیچے رکھا اور دودھ دوڑنا شروع کیا، پھر وہ پیالہ بھر گیا۔ اب کی بار میرے آقا نے اٹھا کر اپنے صاحب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرمایا، فرمایا کہ یہ لو پیو۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ دودھ کا پیالہ پیا اور یوں اپنی بھوک اور پیاس کو مٹایا۔ پھر تیسری بار پھر میرے آقا نے وہ کٹورا لیا اور بکری کا دودھ دیا اور وہ برتن بھر گیا۔ چنانچہ اب کی بار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو دیا اور کہا کہ یہ تو تم بھی پی لو۔ چنانچہ اس غلام نے بھی اس دودھ کو پیا اور اپنے اس دودھ سے اپنی بھوک اور پیاس کو ختم کیا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، چونکہ اس بکری کو میرے آقا کا ہاتھ لگ چکا تھا، اب بھی اس بکری کے تھنوں میں ایسے لگتا تھا کہ یہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ غلام جب بکریوں کا ریوڑ لے کر اپنے دنیاوی آقا کے پاس شام کو جب پہنچتا ہے، اس کا آقا دیکھتا ہے کہ آج اس کی بکریاں انتہائی فرما ہیں اور سب بکریوں کے تھنوں میں کثیر دودھ ہے،
दुनियावी आका था वो बड़ा खुश हुआ और खुश होकर अपने गुलाम को कहने लगा, लगता है आज तो कहीं किसी बहुत ज्यादा सब्जाजार में चले गए थे जहां हमारी बकरियों ने चरा है। आज ये बकरियां फरमा भी लग रही है, सेहतमंद भी लग रही है, सैर भी लग रही है और इनके थनों में दूध भी काफी मिकदार में है। लिहाजा जिस चरागाह में आज तुम गए थे, मेरी वसीयत और ये मेरा हुक्म है कि रोजाना तो उसी चरागाह में जाया करना और वहीं जाकर अपनी इस बकरियों को चराया करना, क्योंकि इससे हमें कसीर मुनाफा मिलेगा। गुलाम को तो क्या चाहिए था, चुनाचे वो तो पहले से ही मेरे आका की जुल्फों का असीर हो चुका था। मेरे आका ने जब उसको दूध पिलाया ना, जब वो फारिग होने लगा तो मेरे आका ने शायद फरमाया कि क्या तू इस्लाम कबूल करेगा, तो उसने खुशी से इस्लाम को कबूल कर लिया। तो चूंकि वो पहले से ही मेरे आका से मुतासिर हो चुका था और मेरे आका का ये मुआवजा दे चुका था, अब तो वो मेरे आका की जुल्फों का असीर हो चुका था। अब तो उसकी ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी का एक एक जो लम्हा है वो मेरे आका की बारगाह में गुजरे। चुनाचे उस गुलाम ने इंतहाई कर्ब में, इंतहाई मुशक्कत में रात गुजारी और वो तो इसी इंतजार में था कि ये रात की घड़ियां खत्म हो और मैं जो है अपने आका की बारगाह में पहुंचूं, मैं फसल इख्तियार करूं, मैं अपने आका की बारगाह में जाकर हाजिरी दूं। चुनाचे ये रात गुजरती है, सुबह होती है। ये सुबह तड़के ही ये गुलाम उठता है और अपनी बकरियां लेता है और सीधा उस जगह पर पहुंचता है जहां मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। चुनाचे ये सारा दिन मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहता है, दूध जो है वो पेश करता है, फिर शाम को जो है अपने बकरियों को लेता है और अपने दुनियावी आका की बारगाह में हाजिर हो जाता है। और उस तरह दुनियावी आका होता है, बड़ा खुश होता है। अब तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन जब ये गुलाम बकरियों को लेकर के मदीने और मक्का पाक की जब गली में से गुजर रहा होता है, उसी गली में इत्तेफाक से मक्के का फिरौन अबू जहल जो है वो भी गुजर रहा होता है। वो जब बकरियों को इंतहाई फरवा देखता है तो उसके आका जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन जुदान था पूछता है कि तुम्हारा ये जो गुलाम है ये कहां बकरियां लेकर के जाता है और कितना अर्सा हुआ है कि ये बकरियां फरवा हुई है। उसने कहा कि सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं, ये 3 दिनों के अंदर हम यही मामला देख रहे हैं कि हमारी बकरियां सेहतमंद हो गई हैं और ये दूध भी पहले से ज्यादा देती है। तो देखिए अबू जहल जो इंतहाई सख्त और पक्का काफिर और मुशरिक था, लेकिन उसका यकीन और इज़ाम देखिए। उस बदबख्त ने कहा, उस काफिर ने कहा कि मैं ये यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारे गुलाम को पता है मुसलमानों का नबी कहां पर तशरीफ फरमा है। उसने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 दिन और इतनी मुख्तसर से अरसे में बकरियों का फरवा हो जाना और उनका इतना कसीर मिकदार में दूध देना, ये तो अल्लाह का नबी कर सकता है। इस बात को मानता था कि ये काम और ये कुदरत जो है वो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उसकी बदबख्ती देखिए कि वो सारी जिंदगी मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ ही रहा। लेकिन जब उसकी ये मुखालफत बढ़ी ना तो लेकिन ज्यादा असर न चल सकी। गज़वे बदर में मौत के घाट उतारा गया और जिद्दत के साथ उतारा गया। आप देखिए कि ये जब मरा था उस वक्त भी इसका इनाद, इसका तकब्बुर इस उरूज में था कि जब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका जब गला काटने लगे तो उस वक्त चीख कर बोला कि तुम कौन हो। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपना तारुफ कराया तो वो चीख कर जो है वो कहने लगा, हाय अफसोस, हाय मेरी बदबख्ती कि मेरा सर जो है वो जवान काट रहा है, काश मेरा सर एक सरदार काटता। फिर उसने कहा कि जब मेरा सर काटने लगे तो मेरा सर जरा ऊपर से काटना ताकि सरदार का सर पहचाना जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार मदीना रहमतुल वसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर ये जो अबू जहल था ये इतना बदबख्त था, फिर जितना भी कलाम हुआ था सरकार की बारगाह में इसने सारा कलाम सुनाया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि एक मूसा का फिरौन था और ये मेरी इस उम्मत का फिरौन है और मेरी उम्मत का फिरौन मूसा के फिरौन से ज्यादा काफी और भारी था। चुनाचे ये वो बदबख्त था, लेकिन देखिए कि इसने
चुनाचे जब उसने कहा ना कि तुम्हारा गुलाम जानता है, और ये उसी जगह पर जाता है जहाँ पर मोहम्मद अरबी मौजूद है, तो अब की बार अब्दुल्ला बिन जुदआन जो इस गुलाम का आका था, इसने मना कर दिया। इसने कहा कि तुम वहां पर नहीं जाओगे जहाँ पर मुसलमानों के नबी जो है वो तशरीफ फरमा है, तुम उधर नहीं जाओगे, तुम किसी और मकाम पर जाओगे। अब यहाँ से इस गुलाम की इश्क का इम्तिहान शुरू होता है। फसल की घड़ियां खत्म होती हैं, हिजरत की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। अब तो ये नया नया सिलसिला है ना, अब तो सिर्फ वो फसल से हिजर की तरफ आ रहे हैं, जुदाई की तरफ आ रहे हैं, अभी और आगे बड़े इम्तिहान है। चुनाचे क्या करते, जो के गुलाम थे और आका की बात मानना पड़े, अब ये दूसरी तरफ चले गए और वहां पर ये बत्ती जलाने लगे। एक बार ये सहने हरम में आए, और सहने हरम में जब तशरीफ लाए ना, तो जब वहां पर काबा के अंदर बुतों को देखा तो जलाल आ गया, रह ना गए। तो चूंकि दिल के अंदर इस्लाम का नूर पहले से दाखिल हो चुका था, सच्चे और पक्के मुसलमान हो चुके थे, और उन बुतों से इनको जो है वो हकीकत में नफरत हो चुकी थी। जब दाएं बाएं देखा और उनको कोई बंदा नजर ना आया, देखा कि कोई भी काफिर और मुशरिक नहीं है, तो फिर आपने उन बुतों को जो है उनकी तरफ देखा और उन पर थूक दिया, और बुतों पर थूक करके कहा कि कितने ही वो बदबख्त लोग हैं जो तुम्हें पूछते हैं, लेकिन आपको तो पता नहीं था, उस गुलाम को तो पता नहीं था कि पीछे कुछ मुशरिक, कुछ काफिर ऐसे थे जो छुप कर बैठे हुए थे, जिन पर इनकी नजर नहीं पड़ी थी। चुनांचे उन्होंने देख लिया कि ये गुलाम किस तरह की हरकत कर रहा है। अब जब इस गुलाम ने देखा कि मुझे उन्होंने देख लिया, तो ये जल्दी से तेजी से चलते हुए जो है वो अपने आका के घर आ गए, लेकिन वो काफिरों को पीछा न छोड़ा, वो भी चलते हुए अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर आ गए और कहा कि आज तुम्हारे गुलाम ने ये हरकत की है। चुनांचे जब काफिरों ने उस बड़े काफिर को बताया कि तुम्हारे गुलाम ने ये हरकत की है, तो वो समझ गया कि इसने अपने आबा के दीन को छोड़ दिया है। चुनांचे अब उसने क्या किया, उसने अपने इस गुलाम का हाथ पकड़ा और अबू जहल और उमैया बिन खलफ के हाथ में दे दिया, कहा कि अब इसका मामला तुम लोगों के सिपुर्द है, अब तुम जानो और ये गुलाम जाने। अब यहाँ से हकीकत में इम्तिहान शुरू होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस गुलाम को पकड़ा और बाहर जो है वो रेगिस्तान में ले गए, जहां पर दोपहर के वक्त धूप की वजह से, गर्मी और शिद्दत की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से, हरारत की वजह से वो जो रेत थी वो तप रही थी। इस गुलाम के कुर्ते को उतारा और वहां पर उसको लिटा दिया, और लिटाया, और सिर्फ लिटाया नहीं बल्कि ऊपर छाती पर जो है भारी का पत्थर रख दिया, और फिर चिल्लाने लगे कि तू अपने आबा के दीन पर दोबारा लौटा, हम तुम्हें छोड़ देंगे। इतनी शिद्दत के बावजूद, इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी तकलीफ के बावजूद उस गुलाम की ज़बान से जब भी कोई लफ्ज़ निकलता था तो वो ये अल्फाज होते थे, वो ये लफ्ज़ होते थे, अल्लाहु रब्बी अल्लाहु अहद अल्लाहु ला शरीका ला, कि अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, इसके अलावा ना वो सिसकते थे, ना ही वो वावेला बजाते थे, बल्कि इन अल्फाज से गोया कि यूं समझे कि उस गुलाम को तकवीयत मिलती थी, उसको ताकत मिलती थी, और इसी ताकत के भरोसे पर उन्होंने इस सजा को बर्दाश्त किया। चुनांचे सिर्फ यहाँ तक बस नहीं था, बल्कि वो क्या करते थे कि कभी उस गुलाम को उठाते और फिर उस पर लोहे की ज़रा पहना देते। लोहे की ज़रा का यूं समझे जैसे आज हमारे दौर में लोहे वो जुब्बा पहनते हैं जो सर से लेकर पांव तक होता है, इसी तरह वो लोहे का जो है वो लिबास होता था जिसको ज़रा कहा जाता था। जंगों के अंदर बचने के लिए जो है वो सेफ्टी के लिए उसको पहना जाता था, तो वो लोहे की बनी हुई ज़रा उसको पहना दिया जाता था और नंगे बदन उसको पहना दिया जाता था, और उस लोहे की ज़रा को पहनाकर फिर उस रेतले मैदान में जब दोपहर का वक्त होता था, कड़कती धूप होती थी और नीचे से भी गर्मी और ऊपर से भी गर्मी, ऐसे आलम में वो ज़रा पहनाकर उस गुलाम को लिटा दिया जाता था और फिर ऊपर से पत्थर रख दिया जाता था, और फिर कहा जाता था, डिमांड की जाती थी कि दोबारा अपने आबा के दीन पर आ जाओ, लेकिन उस गुलाम के मुंह से यही अल्फाज निकलते थे, अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु अहद अल्लाहु ला शरीका ला, कि अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, यही अल्फाज निकलते थे। बस फिर यहाँ तक बस नहीं करते थे, बल्कि उस गुलाम की उस गर्मी की वजह से, उस ज़रा की हिद्दत की वजह से वो जो जिस्म होता है उसकी चर्बी जो पिघलना शुरू हो जाया करती थी, लेकिन वो गुलाम जब भी बोलता था उसके मुंह से जब भी अल्फाज निकलते थे तो वो यही होते थे,
अल्लाह रब्बी अल्लाहु अहद अल्लाहु ला शरीक ला, कि अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। कभी वो जालिम जो है वो मक्का के उबाश लड़कों के हाथों जो है उनको सुपुर्द कर दिया करते थे और वो रस्सी उस गुलाम के गले में डालते और फिर मक्का की गलियों का तवाफ कराते थे और घसीटते थे। एक बार मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम को देखा और जब देखा उसकी हालत को देखा तो शर्फा इसमें गुलाम सबर कर, तुझे इस सबर का रब तुझे अजर देगा। चुनाचे उन्होंने इन सारी तकालीफ को इंतहाई बाहुस्न खूबी से अंजाम दिया और सबर से बर्दाश्त किया और कोई भी या कोई बेसब्री वाला जो है जुमला अपने मुंह से निकाला नहीं था। हमेशा सबर से रहे और अल्लाह का दामन जो है वो मजबूती से थामने रखा और अपने प्यारे हबीब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये सारी तकालीफ बर्दाश्त करते रहे। एक वक्त वो आया मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दिल का जो है ख्वाहिश का इजहार फरमाया अपनी ज़बान के जरिए और इरशाद फरमाया काश कि कोई उस गुलाम को खरीद करके आजाद कर दे। जब आपके यारे गार यारे बाजार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आका की ख्वाहिश का जब इजहार अपने नफ्सों से सुना ना तो फिर यारे गार यारे बाजार उठे और उमैया बिन खलफ के पास गए और उसको मुंह मांगी रकम देकर उसकी डिमांड के मुताबिक जितना उसने कहा उसको पैसा देकर उस गुलाम को आजाद कर दिया। फिर जब वो गुलाम आजाद हुए तो फिर वो अपने आका हकीकी आका जो दुनिया में भी आका है, जो आखिरत में भी आका है, जो बरज़ख में भी आका है, जो हकीकत में दुनिया और आखिरत का मलजा और मावा है, पनाहगाह है, उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं और फिर ऐसी हाजिरी दी कि अब यहाँ से लेकर जब तक इस दम पे दम रहा अपने इसी आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। आप जानते हैं ये गुलाम कौन थे? ये हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर राह हक में इतनी तकालीफ बर्दाश्त की और इन तकालीफ के बाद जो समरा मिला वो समरा ये मिला कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुअज़्ज़िन बना लिया, अपना नायब बना लिया और फिर जब तक ज़ाहिरी हयात के साथ मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम रहे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ साथ रहे और हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जो असहाबे सुफा वाली जो अकेडमी थी, वो जो आजकल के हमारे दौर में तालीमी इदारों में जितने भी नाम लेते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये जितने भी नाम निकले हैं वो सारे उस तालीमी इदारे से निकले हैं और उस तालीमी इदारे के सबसे पहले ये स्टूडेंट है, ये सबसे पहले तालिब इल्म है जहाँ पढ़ने वाले ये सहाबी रसूल हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके जो मुअल्लिम हैं, इनके जो लेक्चरर हैं, इनके जो प्रोफेसर हैं, इनको जो पढ़ाने वाले हैं वो कोई और नहीं वो मेरे और आपके आका मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सारी जिंदगी उस सुफ़े पर बैठकर अपने आका की जो है वो सोबत को इख्तियार किया और अपने आका से तालीम हासिल करते रहे। मेरे आका ने आपको अपना खासिम बनाया हुआ था, अपना खजांची बनाया हुआ था और ये रुपए पैसे के जितने मामलात होते थे ये सारे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के सिर होते थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की क्या शान है, इनकी शान सुनिए जरा। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बयान फरमाते हैं कि जब मेराज की रात मुझे जब जन्नत की सैर कराएगी ना तो फरमाते जब मैं जन्नत में दाखिल होने लगा तो मैंने अपने आगे आगे कदमों के चलने की आवाज सुनी। तो जब मैंने पूछा कि ये मेरे आगे आगे कौन चल रहा है तो बताया गया कि आपके गुलाम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये शान है आपकी कि हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार से पहले जन्नत में जा है। जिस तरह दुनिया के अंदर मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जानवर पर सवार होते तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आगे से धकेले पर आगे के चल रहे होते थे। तो सेम क़यामत के दिन में यही मंजर होगा जब मेरे आका जन्नत में जाएंगे तो ऊँटनी पर सवार होंगे और आगे रिकाब पकड़ने वाले हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक अजीब सा जो है वो जब तारुफ किया जाता है, बास हमारे जुहला जो होते हैं वो बयान करने वाले वो अपना ये मुकर्रर हजरात आप
آپ کے بارے میں کچھ اس طرح کا لفظ بیان کرتے ہیں کہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، حالانکہ انتہائی غلط ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تعلق جو وہ حبشہ سے تھا، اس وجہ سے آپ کو حبشی کہا جاتا ہے، نہ کہ آپ کا رنگ کالا تھا، بلکہ آپ کے رنگ کے بارے میں اصول البابا جو سیرت صحابہ کے بارے میں لکھی گئی کئی جلدوں پر جو ہے عربی میں کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا نام، آپ کا جو رنگ تھا وہ کالا نہیں تھا، بلکہ آپ کا رنگ گندمی تھا۔ جس طرح گندم کا دانہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہلکا سا جو ہے اس کو سیاہ کر دی جائے تو وہ جو سیاہی مائل ہو جاتا ہے، جسے ہمارے سامنا رنگ کہا جاتا ہے، یہ والا رنگ تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میوچل پیرس میں ملیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کا یہ عشق اور یہ آپ کی محبت کا یہ انداز بتاتا ہے کہ دنیا میں اگر آئے ہیں اور اگر عشق کرنا ہے تو وہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کریں گے تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور انجام